Welcome to Mosaic Noon Talks. Thank you so much for joining us today as we celebrate the 15th anniversary of TD Mosaic Festival with all of you. The idea is that we bring in all our past 14 years of headliners and artists that you loved and to get them one by one to come and join us at our show. So it's good to. I have to do some work here. I need to close this sound. Yes. So today I'm really excited that we have with us amazing talent and an Indo-Pakistan collaboration, which very generously and very beautifully has been put together by our wonderful friend, my old-time friend and little brother, Mikal Hassan. Mikal, welcome to Assalamu Mosaic alaikum. Noon Talk. जीते How are रहो you? कैसे हो I'm good. I'm good. It's very exciting to have you guys here back with us for the third time. For the You third guys time. have performed the first time in 2010, and Yes. from that we have a beautiful clip. So let's Rakshana, you ready with the clip? So we can show the clip. वे माया तेरे वेखण वे माया तेरे वेखण चुक चरखा गली दे विच डावां वे लोटा पानी मैं कतनी तंद तेरी आया ना दे पावां वे माया तेरे वेखण What a wonderful performance that was. Awesome. And this amazing singer who is very, very young is now the Lux Style Award winner, Asad Abbas. And Asad came, he was very young, 2010. And I remember in the afternoon, I had lunch at my house or dinner at my house. And I found that Asad was sitting outside and crying, missing his mom because this was his first trip out of Pakistan. You remember Asad? तुम्हें याद है? जी तो बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो उस वक्त मैं मैं बिल्कुल तुम बिल्कुल मेरे बेबी बन गए थे उसके बाद. हाँ, बिल्कुल मुझे याद है, बल्कि तब तब तो मेरी दाढ़ी भी नहीं आई थी, अब तो काफ़ी बड़ा हो गया हूँ मैं। That was 10 years ago. So Asad Abbas is with us. And then we have another very beautiful talent all the way So from Mumbai, the Bengali Hasina, which is Sharmishta Chatterjee. Sharmishta, थैंक thank you so much. Sharmishta joined us on Mosaic Stage in 2015 with Mikal Hassan Band. So Sharmishta, it's wonderful to see you. Thank you very much for joining us. Thank you. It's such a pleasure. And I have some beautiful memories of performing at Mosaic with the Vikal Hassan Band. And I'm Oh, kind of reliving those moments right now while talking to you. Or bahut bahut mubarak. Congratulations on the 15th anniversary to Mosaic. थैंक यू सो मच थैंक यू और मिकाल सबसे पहले आपके साथ गपशप शुरू हो लोगों को आपके बारे में बहुत पता है दे आर सो एक्साइटेड टू नो मोर फ्रॉम यू तुम एक छोटा सा रिकैप दो तुम्हारा म्यूजिकल जर्नी इन 5 sentences. 5 I sentences. know it's very short for you, but yes. So basically, in 2013, we set up a lineup with Sharmista in India, and post that we were touring with her. उसमें मैडम हुमैरा भी हमारे साथ लाहौर में काम कर रही थी। तो अब वो इस तरह के कुछ इंडियन आर्टिस्ट भी हैं, कुछ पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी हैं जो गा रहे हैं हमारे साथ। ये दोनों इस वक्त गा रहे हैं, बट शर्मिस्ता इज डूइंग डिफरेंट सॉन्ग्स, असद अपने सॉन्ग्स करते हैं। और मज़े की बात ये है कि ये जो गाना हमने आपके लिए प्ले करना था, जब ये 10 साल पहले आया था, तो ये गाना ही मैंने इसको कहा था कि इसको रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, और हुआ ये कि हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो अब जाके उस गाने को हम एज अ परफॉर्मेंस निकाल भी रहे, हम लाइव भी उसको प्ले करते रहे हैं। और योर फेस्टिवल वाज द फर्स्ट टाइम कि हमने वो गाना सोचा था कि इसको ट्राई आउट करते हैं, बिकॉज इससे पहले हमने ये परफॉर्म नहीं किया था।
तो बड़ी अजीब बात है कि वही गाना आप लोग प्ले कर रहे हैं जो हम आपके लिए अभी प्ले करने लगे हैं, जिसकी स्टूडियो रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। वंडरफुल। तो लेट्स सी के ये सफर कितना आगे बढ़ा है, तो लेट्स हियर दिस सॉन्ग। ओके जी बिल्कुल, चलो जी स्टार्ट जी। सही है। तती रेत कड़ाया दे, तती रेत कड़ाया दे, ओ नहीं लोड़ कमाया। So this is the recording. माया वे तेरे वेखण लई चुक चरखा गली विच डावां मैं लोकां पानी भड़कत दी तंज तेरियां यादां दे पावां। माया वे तेरे वेखण लई। गीत छिड़ के तंद खिच दे हुलारे खावा मैं लोकां पाने बड़ा कत दी तंद तेरियां यादां दे पावा। माया वे तेरे वेखण लगी। तेरे बातों के दर जावा मैं लोकां पाने बड़ा कत दी तां तेरियां यादां दे पावां।
माया वे तेरे वेखण लई बहुत वाह, मजा आ गया, बहुत बहुत मुझे आई गॉट completely transported to Living Arts Center 2010 जब Celebration Square was under construction, so we were in Living Arts Center and you were performing there on stage despite the fact that we did have a huge downpour, and after that you guys came and suddenly the sky opened up and it was beautiful. तो निकाल मुझे ये बताओ कि मुझे याद है तुम्हारी एल्बम जो मैंने पहली दफा सुनी थी, जिसके बाद मुझे तुम्हारे बारे में पता चला था, वो सब तक हाँ हाँ, तो उसके बाद और उस सब तक को बहुत बड़ा एक्सेप्टेंस मिला. इट वाज ऑल ओवर द जिसमें रिकग्निशन का पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें मिकाल हसन का नाम आता था, साथ ही सब तक आता था. तो हाउ डू यू वहां से सब तक का अब तक का सफर कैसा रहा? सफर काफी डिफिकल्ट रहा है मेरे लिए और मेरे म्यूजिशियंस और सिंगर्स के लिए, बिकॉज जैसे आपको पता है पाकिस्तान में सन 2007 से लेके टिल वेरी रिसेंटली बहुत ज्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट थी, बहुत ज्यादा सेक्टेरियन वायलेंस थी. इट वाज बैड इनफ दैट यू नो आपने और मैंने कितनी बार डिस्कस किया, यू टोल्ड मी कि यू शुड जस्ट गेट आउट ऑफ देयर. और बाकी मतलब कि अब तो इस रजीम के बाद जो करंट गवर्नमेंट है उसकी हरकतों के बाद मुझे लग रहा है कि वाकई कोई जगह नहीं रही है यहाँ तो हम लोगों के लिए. तो उस वक्त भी एक्सट्रीमली हार्टब्रेकिंग. हाँ जी, जब से हम लोग देख रहे हैं जो भी लीडर आया उस चोर ही निकला है, झूठ ही बोला उसने. तो एटलीस्ट आपका प्राइम मिनिस्टर झूठ तो नहीं बोलता ना. नहीं, हमारा बहुत प्यारा प्राइम मिनिस्टर है. तुमने कभी उसको देखा नहीं? उसके बेचारे के बाल बहुत इट्स एम्बैरेसिंग. इट्स फ्रैंकली इट्स एम्बैरेसिंग. तो हम सारे देखें जी, संजीदगी की बात यह है कि बहुत मुझे तकलीफ होती है जो मैं देखता हूँ जिस किस्म के हमारे लीडर्स हैं, जिस किस्म के हमारे लोग हैं, और जो उनको बातें बताई जा रही, जो उनको गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है दूसरे लोगों के बारे में, दूसरे ममालिकों के बारे में, दूसरी नेशनैलिटीज के बारे में, दूसरे रिलीजन्स के बारे में. इन चीज़ों की जगह जो पाकिस्तान हमने सुना था उसमें तो इन चीज़ों की कोई जगह ही नहीं थी कि सबके लिए था वो तो. लेकिन असलियत ये है कि वो पाकिस्तान मर गया है और अब ये वाला जो पाकिस्तान है जिसका नाम पाकिस्तान होना चाहिए, क्योंकि फाके ही पढ़ रहे हैं सबको इसमें. तू मेरा शो पना बंद कराना भाई. आपका शो इनफैक्ट मैं आपको बताऊं फ्रस्ट्रेशन नहीं है, सच्चाई है. आप तो कनाडा बैठी, हमने पूछे, हम यहाँ बैठे हैं, हमें पूछे हमें क्या भुगतना पड़ता है. फिर इंडिया जाते हैं तो उधर मोदी वाले पड़ जाते हैं, ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ. ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਬੰਬ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਚਾਹੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਕੀ ਕਰੀਏ, मर जाइए. अच्छा तो मुझे बताओ, तुम साउथ बाय साउथ वेस्ट गए थे, वो कैसा तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा? वो बहुत अच्छा था. उस पे हम लोग मैडम हुमैरा को लेके गए थे. अच्छा. शर्मिस्ता जो थी वो इंडिया में थी, मैडम हुमैरा पाकिस्तान में थी, और मुझे बताया गया था कि मिकाल हसन बैंड को हमने ले जाना है साउथ बाय साउथ वेस्ट पे. दे वर डूइंग अ पाकिस्तानी शोकेस, so they wanted me to play on it, and I told them that look, my singers in India, so they were like well we can't call her because it's a Pakistan showcase. तो मैडम हुमैरा और मैं कुछ सॉन्ग्स पे हम लोग काम कर रहे थे, उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है, और उनको फिर मैंने कहा कि आप हमारे साथ करें. तो उनके साथ फिर हमने वो टूर किया और माशाल्लाह बहुत बहुत जबरदस्त उन्होंने गाया. आपको पता ही हुमैरा चन्ना आपके साथ भी इनफैक्ट मैडम हुमैरा ने एक साल तो आप लोग के पास भी लाया था उनको. मैं उनका पूरा सेट हमने पहली दफा तुम ही लेके आए थे हुमैरा चन्ना को, फिर दूसरी दफा हमने बुलाया था हुमैरा को जी. तो शी इज सच एन अमेजिंग टैलेंट. उनको भी हमने ऑफ कोर्स शी इज अ पार्ट ऑफ द मोज़ेक नून टॉक्स एज वेल, सो शी विल बी कमिंग अप टू. लेकिन अच्छा मुझे ये बताओ कि शर्मिष्ठा के साथ तुम्हारा कैसे कांटेक्ट हुआ, तुम लोगों ने कैसे प्लान किया कि अब ये एक अदद इंडो पाकिस्तान कोलैबोरेशन होगा, और तुम्हें आई एम श्योर उसमें चैलेंजेस बहुत थे, लेकिन शर्मिष्ठा आल्सो स्टक बाय, एंड हाउ डिड इट हैपन? शर्मिष्ठा, योर इनपुट वुड बी वेरी अप्रिशिएटेड. Should I say? Or she's asking you. Yeah. Okay. So ऐसा हुआ कि I was singing with
legendary pianist Louis Banks is very famous here. तो मैं उनका जो बैंड है गंगा शक्ति, उसमें I was singing. It's an Indo jazz fusion. And Mikal happened to be friends with Gino Banks, who's Louis Banks' son, and Mikal was looking for a female singer. So that's how, I mean, Gino referred me to him. And one fine day, I just got called. I got a call from Mikal Hassan. Would you join my band? And I was like so super happy because when I came to Mumbai, it was in 2005. I had picked up one CD of I think the first Mikal Hassan band album, and मुझे रात को नींद नहीं आती थी, तो मैं घर से दूर थी, तो मैं वो सुनती रहती थी, मुझे इतना अच्छा लगता था. And cut to on around 2013, I mean, Mikal Hassan is calling me to sing in his band. So it was I was so happy. But honestly, it has been, मतलब मेरे लिए तो इतना ज़्यादा, it's opened another, interestingly, Asma, I mean, I belong to Bengal. I'm born and brought up there, and it's Bengal and Punjab both have actually suffered the consequences of the division, the partition. Yeah. So somehow by birth I'm connected to one land, and मेरे काम के वजह से मैं दूसरे जो पाकिस्तान मतलब पंजाब के साथ मैं कनेक्ट हो गई. तो मेरे लिए it has been a very interesting learning process to sing in Punjabi, and the entire array of Sufi poetry, and something spectacular opened up, and I'm still learning and enjoying the process, apart from all the clashes and all the impediments that may be coming, but I'm really enjoying it. Wonderful. तो अच्छा, मैं असित से पूछना चाहती हूँ, असित तुमने जब आजकल तुम क्या कर रहे हो, कहाँ पहुंचे मिकाल के साथ? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने लगी हूँ. मिकाल आके तुम बैठ जाओ वापस, क्योंकि मैं तुम्हें देख सकती हूँ. तो मैं एसी जस्ट कर रहा था, तो गर्मी बहुत है यहाँ स्टूडियो में. मैं आ रहा हूँ, वो एसी के रेंज मेरे पे नहीं आ रहे, तो मैं पसीने निकल रहे मेरे. अच्छा इजी. अच्छा, तो फिर मुझे ये बताओ कि आजकल तुम क्या कर रहे हो? कोई फिल्मों में गाना, कोई अपना एल्बम, किस चीज पे काम हो रहा है? आज ही सबसे पहले तो मिकाल हसन बैंड के साथ एल्बम कर रहा हूँ, और ये चरखा गाना हमने रिकॉर्ड किया है, इसका वीडियो आएगा, और इसके साथ ही इंशाल्लाह ऑफिशियली पूरी एल्बम पे काम हो रहा है. और इसके साथ साथ आपको पता है कोरोना की वजह से सब स्टॉप कर दिए फिलहाल हमने. बाकी काम तो तकरीबन हो चुका था, सारा पूरा प्लान हो चुका था, टूर्स भी प्लान थे काफी, और शोज भी प्लान थे. तो बस इंशाल्लाह ये जैसे ही बेहतर होती है बाबा खत्म होती है. तो भी आपा को बताओ ना, फेस्टिवल्स हमने अपने खुद किए थे, जिसपे हमारा टूर था. जी बिल्कुल, सारा तुमने प्ले किया अभी. बहुत ही जबरदस्त किस्म के हमारे ये फेस्टिवल्स थे हमारे. कौन सा था? We set up an independent festival for ourselves. Fabulous. I cannot hear you properly, Mikal. So, but anyway, अब मुझे बताओ नेक्स्ट चीज क्या सुनवा रहे हो मुझे? आप हमारी ऑडियंस क्या सुनवाने लगे हो? So I'll sing किनारे. Wow. किनारे मैंने कोक स्टूडियो में भी गाया था विद मिकाल. बहुत ही अच्छा गाया. शर्मिस्ता जी बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत कमाल की आर्टिस्ट हैं. और एमएचपी की अस्मा आपा, मिकाल हसन बैंड की स्पेशलिटी ये है कि जितने भी अच्छे आर्टिस्ट कलाकार जिनको आप कहते हैं, वो उनकी यूनिवर्सिटी है. ये हमें सीखने को मिलता है इस बैंड में. क्लासिकली क्लिक के साथ गाना और बार्स के साथ गाना, गिनकर गाना, तो ये बड़ा मुश्किल काम है. जब पहली दफा मैंने मिकाल को सुना था तो बशीर जावेद बशीर थे, और जावेद बशीर को मैंने पहली दफा मिकाल के साथ सुना था. एंड मुझे भी आपने पहली बार मिकाल साहब के साथ सुना. हाँ, तो फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मेरा करियर का आगाज था, सबसे पहले एक कंपटीशन हुआ था संगीत आइकॉन, पाकिस्तान संगीत आइकॉन. तो उसमें मैंने एज ए कंपटीशन में एज ए हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था. तो उसके जज थे मिकाल हसन बैंड में, पप्पू साहब थे, मिकाल सर थे, और अली हैदर जी थे.
तो मैं वहां पर विन किया वो कंपटीशन। तो मैं शुरू से इनके कौन नहीं फैन, जो अच्छा गाने वाला है वो सभी मिकाल हसन बैंड के फैंस हैं। और सीखने को जो बॉबी फ्रिक्शन है, बॉबी फ्रिक्शन ने भी एक प्रोग्राम किया था, बड़ा अच्छा सीरीज थी प्रोग्राम्स की, इंडिपेंडेंट म्यूजिक और अंडरग्राउंड म्यूजिक के बारे में बीबीसी के लिए, और उसके अंदर उसने मिकाल को इतना प्रेज किया है, एंड ही कंसीडर्स मिकाल एज वन ऑफ द leading bands who are not only working with underground and independent music movement in Pakistan and South Asia, but it also has the perfect potential to grow out of that and become a international international artist, which he of course is. मिकाल, मुझे ये बताओ कि जिस तरह BTS है, this Korean band, boy band, ये लोग My niece loves them. My niece is crazy about them. She's got my daughter of also loves these guys. She keeps telling me about them all the time. ये सब मेन स्ट्रीम को करते हैं ड्रेस, मतलब अंग्रेजी गाने गाते हैं ऑल दैट, तो पाकिस्तानी बैंड उस साइड पे क्यों नहीं जाते? सबसे बड़ा जो आई थिंक इशू है ना मैम, लैंग्वेज का है। हमारी लैंग्वेज उर्दू है, या हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस कोरियन है यार जी, लेकिन उनके पास मैम इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरी चीज ये है, वो कौमें अपने लोगों में इन्वेस्ट करती हैं, वो अपने टैलेंट में इन्वेस्ट करती हैं, उनको मार्केट करती हैं, उनको डेवलप करती हैं। हम लोग इधर खुद ऑन आवर ओन लगे हुए हैं। सो व्हाट वीव डन, BTS तो नहीं हमने बनाया, लेकिन वी स्टार्टेड एन इंडिपेंडेंट म्यूजिक फेस्टिवल फॉर आर्टिस्ट हु आर राइटिंग फ्रेश मटेरियल। नाउ दीज कुड बी ओल्ड आर्टिस्ट, माय फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री, ऑल ऑफ देम जॉइंड इन। जो नेब थे वो भी आए, जो पुराने थे, अली नूर पुराना, सब लोगों की काफी लोगों की करियर्स मेरे साथ स्टार्ट हुई हैं। हनिया, अली नूर, अली हमजा, कामी पॉल, सारे लोग। अबाउट 14 artists in Lahore played for free. They didn't take a rupee because I said to them, just give me 20 minutes of just your songs. I don't want covers. I'm sick of hearing cover songs. मैंने कोई कलाम नहीं सुनना, मैंने कोई गजल नहीं सुननी, मैंने कोई फोक सॉन्ग नहीं सुनना। नया मटेरियल, नए लिरिक्स, नए मेलोडीज, नए कॉम्पोजिशंस। अगर and so the show is created by the musicians. The musicians will recommend other musicians. तो मसाल है कि असद गा रहा है, तो असद मुझे कहेगा सर वो मेरा दोस्त है, वो बड़ा अच्छा गाता है, उसको फीचर कर दें एक गाने पे, उसको बुला लेंगे हम। एज लॉन्ग एज कंटेंट, बिकॉज पाकिस्तान में हम लोग कवर सॉन्ग पे 10 साल से 12 साल से ये कोक स्टूडियो में सुनाई सिर्फ कवर सॉन्ग रहा है। जो ओरिजिनल मेलोडी लिखने वाले लोग थे, सच्चे जो प्रॉपर प्रोफेशनल लोग थे इस काम के, लिरिक राइटर्स, SM सादिक जैसे बंदे ने जिसने इतने हिट दिए हैं, उस बंदे को एक बार भी इन लोगों ने नहीं पूछा कि यार हमारे लिए भी कुछ दरियाफ्त करो, कोई आइडिया। क्यों? इट्स इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी विच इज रिच विद पाकिस्तानी पीपल। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के हम लोग उस्ताद हैं कि अगर हमें कोई काम सस्ते में मिल जाए या हमें 10% मेहनत कम करनी पड़ जाए, तो हम कहते हैं यार हम ये क्यों ना कर लें, सौखा है, पैसे भी मिल जाएंगे। इतने लोग तुम्हारा शो देख रहे हैं, मैं तुम्हें क्या बताऊं। वेखन तो उन्होंने पता होना चाहिए अंदरों हो की रहा है। बहुत बहुत अच्छी बात कर रहे हैं बॉस, बहुत मैम। सारे हमारे मुल्क के टैलेंटेड बच्चे, टैलेंटेड यंगस्टर्स, असद जैसे बच्चे, इसका भाई अली अब्बास, इसका दूसरा कजन मानी अमानत भी हमारे साथ थोड़ी देर रहा था। मैंने इन सब के लिए हमेशा भला चाहा। अब मैं उसको एक सीरियस तरीके में एड्रेस कर रहा हूँ। एक तो हम एक ऑन ग्राउंड फेस्टिवल हमने एस्टेब्लिश किया, उसमें सारे ये इंडिपेंडेंट लोग थे, उसमें रॉक बैंड्स भी थे, लेकिन क्लासिकल और इस तरबियत के लोग भी थे इसमें। 14 artists played. It was an 8-hour festival. And we broke even on our first festival. हमने खुद लगाया था, मेरी जेब से उस फेस्टिवल को खड़े करते हुए 4.5 लाख रुपए लगे थे। साउंड वालों ने मेरे लिए फ्री साउंड किया, स्टेज वालों ने फ्री स्टेजेस दिए मुझे स्पॉन्सर्स ने कहा कि आप फ्री हमारे पैराफर्नियल लगाने पर एक स्टॉल लगा दीजिएगा, हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम अपनी वहाँ चीज़ें रखेंगे। एंड वी ब्रोक इवन ऑन द फर्स्ट वन। ऑन द सेकंड वन हमने इस्लामाबाद में किया, उसमें 15 बैंड आए। सो दैट्स 29 आर्टिस्ट जो कि लोगों ने सुने ही नहीं, जो कि डिजर्व करते हैं प्लेटफॉर्म। अब इस प्लेटफॉर्म को हम नेक्स्ट स्टेज पे ले जा रहे हैं कि हम एक डिज़ाइन कर रहे हैं, एक सीरीज जिसमें हम पूरी दुनिया के म्यूजिशियंस फीचर कर रहे हैं, लेकिन उसमें पाकिस्तानी, बंगाली और इंडियन आवाज़ें होंगी। उनके जो बेस्ट सिंगर्स हैं, जो डिजर्विंग लोग हैं, वो होंगे उस पर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। जी बहुत बहुत मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हारे ये प्लान सुन के, बिकॉज ये प्लान सुन के पता चलता है कि देयर इज मूवमेंट स्टिल गोइंग ऑन। मतलब आप ये बताएं कि आप बच्चे की आवाज सुने,
बच्चे की आवाज सुने, ये डिजर्व नहीं करता कि इसको लोग सुने। बिल्कुल, ये बिल्कुल। गाती है, इसको सुने गाते हुए, ये डिजर्व नहीं करती। तो फिर भी मोमना मुस्तेसन को देखना अगर एंड में जाके, तो फिर क्या रह गया हमारे लिए? लानत है ये उसने भी देखना है। अच्छा सुन, तो देखे, इम्प्रूव करें यार, इम्प्रूव सारे कर सकते हैं, सारे करके improve तुम्हारा कर सकते बिल्कुल सही प्रोग्राम है। देते हैं। मेहनत नहीं बिल्कुल सही करते है। लोग और फिर स्टार बन जाते हैं। मेहनत करो, स्टारडम अपनी अर्न करो, ताकि रिस्पेक्ट हो तुम्हारी। किसी कमरे में जाओ तो लोग कहे यार फलां बंदा है, इसको काम का पता है। बातें बुरी लग रही है तो काम करके BBC दिखाओ। का प्रोग्राम तुमने सुना था? नहीं, मैंने नहीं, पता नहीं केड़ा है बंदा जेड़ा बॉबी। You should. Oh my God, Bobby Friction is amazing. Bobby Friction बहुत मेरा बड़ी है और BBC से करता है प्रोग्राम म्यूजिक के बारे में, contemporary मुझे music लिंक के बारे भेज दें प्लीज। में। और वो तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है। मुझे तो हैरत है कि तुम्हें पता ही नहीं चला इसका। This is a big thing. मैडम मैं बॉबी कीबोर्ड वाले ਨੂੰ जानना। अच्छा तेरे को पता ना लाहौर लेकिन वाला। बॉबी फ्रिक्शन का नाम है Bobby Friction. BBC. अच्छा, और देखो ये यहाँ पे तो लिंक भेज दे dancers मुझे। भी हैं, musicians भी हैं। हुमैरा मस्यूदीन has joined in from Islamabad. Jasmine Rathore is our new Canadian musician, and he is there. Thank you so much. Thank you for all your beautiful messages, Dhruv Naik and Hemant Pawar. Hemant, namaste. Thank you for being here. तो अब मुझे ये बताओ कि तुम नेक्स्ट क्या चीज सुनवाने लगे हो? मैं So Sharmista, Gino and Sheldon were the first Indian musicians to come to Coke Studio in, what was it, 15 जब Coke Studio 8 था, नहीं 10 था, हाँ नहीं जी, 8 था, सीजन 8 था। सीजन 8 में स्ट्रिंग्स ने, फैसल और बिलाल ने इनको इनवाइट किया था to play because we had just formed the band in 2014 in India. Yeah. So they came down and we did 2 songs. We did Bulle Shah's Aao Ni Saiyo, and then we did Kinare, which is उस्ताद तानराज खान साहब की बड़ी पुरानी एक बड़ी खूबसूरत एमन में बंदिश है, और ये हजरत खिजर की तारीफ में है, जो जिनका कमांड होता था आबो हवा पे और जानवरों पे। He used to control all the animals in the sea and he used to control water. So the entire theme is about water, और एक पानी की आपको फीलिंग मिलती है। तो जब ये गाना मैंने अरेंज किया तो मैं यही फीलिंग चाहता था कि एक लिक्विड सा, एक फ्लोई, खूबसूरत सा सेंसेशन, सॉफ्टनेस हो उसमें, मुलायम हो, कोई उसमें हार्ड साउंड ना हो कोई। सो वी अरेंज्ड इट लाइक दैट, एंड व्हेन शर्मिस्ता sang it on Coke Studio, तो आई थिंक a lot of people got to hear how amazing she is, और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगा कि मुझे बड़ा ये फील होता है कि सब कॉन्टिनेंट में हम लोग इंडियन आर्टिस्ट को बहुत तरजीह देते हैं, और उसके बाद हमारे अपने आर्टिस्ट जैसे वो बॉलीवुड का कोई गंदा गाना गाते हैं उनको फिर हम तरजीह देते हैं, लेकिन हम बांग्लादेशी आर्टिस्ट को कभी लिफ्ट नहीं कराते, हालांकि इतनी खूबसूरत आवाज़ें हैं। मैं बांग्लादेश में विंड ऑफ चेंज एक प्रोग्राम है आपा, जिसमें दुनिया के म्यूजिशियंस आते हैं और वो सारी बंगाली आवाज़ें होती हैं उसमें, और वो लोग अपने कल्चर में इतना बिलीव करते हैं, तो हमें इनसे सीखना चाहिए। तो आई तुम्हारा शो तहमीना नायक is watching it from Dhaka. Yeah. My very good friend and great supporter of music. जी, तो what we want to do is bring the subcontinent का जो टैलेंट है वो बेशक मेरे जरिए के थ्रू ना हो, अगर मैं एक प्रोग्राम पे भी उनको फीचर कर सकूं with me writing the music for them and getting all these amazing musicians, तो आई थिंक वो एक इंटरनेशनल जो आप बात करी थी ना कि हम इंटरनेशनल क्यों नहीं जा रहे, हम इंटरनेशनल इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हम इंटरनेशनल लोगों के साथ काम नहीं करते, हम सिर्फ आपस में काम करते हैं। So I want to open that up to the world, have British musicians on it, French musicians. I know great musicians all over the world, over the world. And all of them are my friends. So I want to do this project and they've all agreed to play with me. Just the world's best players are going to be on this program with the world's best voices from Bangladesh, from India and from Pakistan. कोई politics की जगह नहीं है मेरे दिल में, politics की कोई जगह नहीं, सिर्फ music होगा। जिसका music अच्छा है वो बंदा ही अच्छा होगा। हाँ जी, बस कह दिया, चलो उन गाना सुना दे, इस तो पहले लोकी संजय किसी को जलसा कराना है ने। वाह, क्या कहना बॉस?
किनारे किनारे दरिया बांधो मौजाए बहरे उल्फत में खिज़र किनारे 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 दरिया कश्ती मौजाए बहरे उल्फत में किनारे किनारे दरिया कश्ती बांधो उल्फत में खिज़र Flute solo. The guitar can be a little Soft. soft. Music ऊंचा कर दो ना. ऊंचा कर दो music. No, it's Just turn it up a bit. Lakshan asking सुभान अल्लाह, क्या बात. Thank you. Beautiful. How wonderful. क्या It बात. was such a क्या कहना lovely, boss, lovely क्या कहना. song. And we have so many people who are. Nashnia Haroon is there. She loves Kinare. Faisal Raza. Thank you for joining, Faisal. And we have Manu Sandhu who has joined in. Thank you so much for everybody for their such lovely comments. तो मुझे ये बताएं कि अभी इस टाइम के ऊपर हम लोगों को जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज चाहिए वो है चाहिए कि एक अदद डिसिप्लिन हो हमारी जिंदगियों में. तुम लोग कैसे ये टाइम गुजार रहे हो with the COVID situation all around the world? So how is it going with you guys? One by one. Mikal first. Okay, I'll start then. Okay, Sharmishta.
So when the lockdown happened, I found my refuge in music, honestly. तो मैं शुरू में काफी छोटे videos करके काफी experiments कर रही थी. And the amazing thing was when I was just recording small videos and putting them up on Facebook, पाकिस्तान के काफी म्यूजिशियंस ने उसको लेके, किसी ने पूछा कि मैम इसके ऊपर मैं गिटार बजा दूं, किसी ने कहा कि ड्रम्स बजा दूं. So they were all collaborating and some nice things were happening, and it was a very positive feeling. And second of all, other than music, what I started doing is I started a series called Women of the Subcontinent, and I thought that this is one time that we should all artists, I have been very inspired by all the female artists, because subcontinent mein it's not very easy for females to pursue I arts, know. because of बंदे ही ऐसे होते हैं. खाना नहीं पकाना शुरू किया तो यहाँ पे सारों ने डब रोटियां बनानी शुरू कर दी, खाने पकाने शुरू कर दिए. तो what about you guys? And Asma, it's been so wonderful. I've been connecting with female artists from Bangladesh, from Pakistan, from India, and sharing our life stories and all the troubles that we have been through to put out to kind of celebrate our lives through the art form that we are. And it also involves cross-genre artists, and it's been amazing, and I've been writing articles on it as well. So it's been quite a fulfilling phase so far. Yeah. अच्छा, तुम क्या करते रहे हो? बस सबसे पहले तो वही बता रहा हूँ कि MHB के सॉन्ग्स माशाल्लाह बड़े मुश्किल भी हैं, डिफिकल्ट भी हैं, तो ये याद करता रहता और प्रैक्टिस भी होती रहती, रियाज भी होता रहता है इसी हिसाब से. तो 1-2 वीक में बॉस भी बुला लेते फोन करके, तो स्टूडियो पहुंच जाते हैं. बस यही याद आजकल फिलहाल तो यही चल रहा है. तो बाकी इंशाल्लाह देखते हैं क्या बनता है. पर हम लोगों को ये मिकाल जो है ना, जिस जगह पे रहता है वो बड़ी मजे की जगह है. It's such a great place. Mikal's late dad Masood was a wonderful host and wonderful friend. और मसूद ने एक दफा हमारा डिनर किया, हम पाकिस्तान विजिट कर रहे थे, मुझे याद है 17 कोर्स कश्मीरी डिनर. I have never had that before. Wow. वैसे It was वाकई such a fabulous experience. दोबारा वो डिनर बना नहीं, because the lady who used to make it, she was the one, Rani, she's the one who made it. Rano Osman is the one who made those dishes. So she's a hardcore Kashmiri and she loves Kashmiri food. So if she can find someone who wants Kashmiri food, तो वो फिर उनकी opportunity होती है कि वो इतना खिलाती हैं. वो 17 dishes थी, मतलब कि क्या शब्देग और वो फिर वो chops थी, वो जो cream में बनाते हैं. Unbelievable, like really good stuff. It was course after course and it was unbelievable. So वो मुझे याद है. और उसके बाद मुझे याद है Masood would bring me the Kashmiri chai when Abba was in the hospital in Lahore. तो मसूद कश्मीरी चाय अपने नुक्कड़ से बनवा के वारिस रोड की, I'll never forget, and God rest his soul in peace. I miss him so much. आपकी और अब्बू की तो खास तौर पे बड़ी एक अच्छी कनेक्ट थी. And I remember you guys, आप और आगा और अब्बू were constantly in touch, even though हम हर साल हम मोज़ेक तो नहीं obviously play कर सकते थे, that would be impossible, but nevertheless throughout the years we've all kept in touch. Or it's grown, Mosaic has grown so much. When we came back and played, पहले हमने 2010 में बजाया था, and I think आपा कितने 500 को लोग थे, 500 लोग थे. हाँ, about 1000 के करीब लोग होंगे, because जगह भी मैंने और 5 साल बाद जब मैंने प्ले किया तो 35,000 बंदा. Wow. 35,000 बंदा. So much for time. 500 से 35,000. That's called a successful society which supports arts. Oh, absolutely. Thank you so much. और हम लोग यहाँ मैम हम फेस्टिवल करते हैं, 400 बंदा आता है, हम सोचते हैं यार अगले वाले पे यार 500 आ जाए तो चलो कुछ बात बन जाएगी. तो उधर से 500 से 35,000 हुआ है. ये फर्क है. ये फर्क. देखो ये चक्कर क्या है कि मैं पाकिस्तान में, अच्छा मुझे हैरत होती है, पाकिस्तान में देखती हूँ जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, वेरी वेल अटेंडेड, बहुत अच्छे अटेंड होते हैं, लोग इतने आते हैं, टिकट खरीदते हैं. पाकिस्तान टिकट नहीं लेते हैं, कोई टिकट नहीं लेता. क्या बात कर रही है, मुफ्त होता है सारा, तो होता है, इसीलिए इतने लोग होते हैं. ये बड़ी गलत बात है. ये चीज जो है ना, ये आई थिंक हमारी कम्युनिटीज को सबसे ज्यादा नुकसान इसी चीज से पहुंचता है कि हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो मुफ्त में काम करने को तैयार हो जाते हैं. मुफ्त में अपने कुछ भी नहीं करना चाहिए. आपका अकाउंटेंट मुफ्त में आपके अकाउंट्स कर देगा. आपके कोई मैम
असल में ये एक ना आर्टिस्ट का एक इकोसिस्टम होता है, आर्ट्स मैनेजमेंट जिसका आपको पता है, और आर्टिस्ट का एक रिलेशनशिप होता है जो कि एक इकोसिस्टम होता है। आर्ट्स मैनेजमेंट जो है वो तभी फंक्शन प्रॉपर्ली करती है जब आर्टिस्ट इन टैंडम विद देम दे वांट टू ग्रो। अगर एक आर्टिस्ट डिमांड ही करता रहेगा आर्ट्स इंस्टीट्यूट से कि मुझे इतने पैसे देंगे तो मैं आऊंगा, तो यू नो यू आर अंडर प्रेशर, देन यू हैव टू कट बजट्स फ्रॉम समवेयर टू गेट दैट गाय टू कम, राइट? But if artists were working in a more flexible manner, where they would have special rates for festivals, special rates for the kinds of cultural events जो कि global calendar events है, जिस तरह आपका है, खालिद सलीबी साहब का नॉर्वे में है, असद उस पे भी आई थिंक तुम गए हुए हो नॉर्वे वाले पे, तो those are cultural events जिसपे हम सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर्स को मैं ये कहना चाहूंगा कनाडा के कि यार आप लोग हर किस्म का आर्टिस्ट बुलाओ, सिर्फ कमर्शियल तरीन आर्टिस्ट ना बुलाया करो। मुल्क में बहुत टैलेंट है आपके, लेकिन आप हर बंदे को नहीं एक्सपेक्ट कर सकते वो राहत फतेह अली खान की ऑडियंस आपको देगा या आतिफ की ऑडियंस देगा, लेकिन आपको अच्छी खासी 2000-3000 का ऑडियंस फिर भी मिल सकता है अच्छे आर्टिस्ट के साथ। अगर आज आप अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब का शो अनाउंस करेंगे तो आपको 20-25 हजार बंदा मिल जाएगा रेडी सुनने के लिए उनको। तो you know we should reach out and work with festivals, but unfortunately festivals सिर्फ कमर्शियल तरीन आर्टिस्ट चाहते हैं हर बार जो भी बिक रहा है उसको बुला लो। आई एग्री विद यू, जिस तरह फेस्टिवल बड़ा होता है उस तरह से ऑडियंस का भी टेम्परामेंट चेंज होना होता है, हो जाता है, यू नो दे वांट। दूसरा प्रॉब्लम जो आ रहा है आर्टिस्ट को, म्यूजिशियंस को, वो ये कि वही लोगों को काम मिल रहा है जो नजर आ रहे हैं। अब नजर कौन आ रहा है? वही लोग नजर आ रहे हैं जिनके पास नंबर्स हैं और जिनके पास कॉर्पोरेट बैकिंग है। तो ये कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप आर्ट्स की जो है ना, इट इज अ डेंजरस टाइट रोप, बिकॉज दे हैव द मनी but they don't have the taste, they don't have the ideas, they don't have the aesthetic, they don't have the integrity जो कि एक असल आर्टिस्ट की होती है। So वो एक आर्टिस्ट को किसी भी तरीके में दिखाने को तैयार है जब तक उनकी बोतल जल्दी बिक जाए, या जब तक उनका पैम्पर जल्दी बिक जाए, या जब तक उनकी ड्रिंक जल्दी बिक जाए, या उनका जूस जल्दी बिक जाए, उनकी केचप जल्दी बिक जाए। उनको क्या फर्क पड़ता है? बहुत अच्छी बात है, बहुत बिल्कुल सही कह। Saad Arif Saqif is a very talented musician right here in Toronto. आपको बहुत प्यार भिजवा रहा है असद भाई को। Hi Asad bhai, he's saying, and all right, Dilavez. Okay, Dilavez, what a lovely name. Dilavez Daniel is sending her regards from Pakistan. So lovely. So there is a constant desire for our artists and our audience to have this interaction with artists, to learn more about them, what they're doing and all that. And you guys are so open with your thoughts and your sharing of ideas. तो हमारी थॉट यही थी कि जो ये हम नून टॉक्स कर रहे हैं इसमें हम आर्टिस्ट को लेके आए और उनको एक नॉन फॉर्मल प्लेटफॉर्म दें जिसके अंदर हम गपशप भी लगाएं, कुछ म्यूजिक भी सुने, कुछ बातें भी करें फेस्टिवल की, और आप लोगों की जो आजकल आप लोग कर रहे हो उसको अपडेट करें। तो मुझे बहुत मजा आ रहा है, लेकिन मुझे पता है कि हम टाइम के अंदर भी जरा सा शॉर्ट हो रहे हैं, लेकिन मैं एक गाना तो मजीद सुनूंगी। तो असद, what are we listening next? कोई ऐसी चीज है जो तुम दोनों गा सकते हो? एक कोई राग ले लेते हैं, देख लें, यही किनारे कर लें इसका लाभ, इस टाइप का सज्जन कर लो, सज्जन कर लेते, एक अंतरा आप कहते एक मैं कर ले। ठीक है, आपका स्केल पर डिफरेंट हो जाएगा। Something from the new album. नहीं, whatever. एक का लगाओ, एक का सजन दे हथ असाडी की कर आखा छड़ वे अड़िया की कर आखा छड़ वे अड़िया सजन दे हथ असाडे सजन दे
बहुत संतरा आयो रात मेरी तलकड़ियां बाज वकीला मुश्किल बनिया बाज वकीला मुश्किल बनिया डाडे कीता अड़ेड़ा की कर आखा छट वेड़िया की कर आखा छट वेड़िया छड़ वेड़िया की कर सजन दे हथ असारे सजन दे हथ असारे नित परनाए बेटा हूं छड़ दे अंतरा छड़ दे रहन दे मर जाई शो मुझे मजा आ रहा है गोइंग ऑन, लेकिन आई थिंक हमारी ऑडियंस जो है वो अपने कामों से बच के निकल के बैठी है, जिस तरह सबीना तलत है अपनी मीटिंग डिले करके बैठी हुई आपका प्रोग्राम देख रही है। तो ऑनेस्टली इट्स सच अ प्लेजर कि आप तीनों से मुझे बात करने का मौका मिला, हमारी ऑडियंस के साथ आप लोगों का इंटरेक्शन हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद है कि जब वक्त बेहतर हो जाएगा, हम लोगों के पास इस बीमारी का इलाज आ जाएगा, तो हम इंशाल्लाह आउटडोर फेस्टिवल्स दोबारा कर सकेंगे और सारे लोग हम दोबारा मिलेंगे। हमारा जो मकसद है वो ये है कि ना सिर्फ हमारे आर्टिस्ट प्रोग्रेस करें बल्कि हमारी ऑडियंस भी प्रोग्रेस करे, वो भी समझे कि अच्छा म्यूजिक क्या होता है और अच्छे म्यूजिक को ना सिर्फ सपोर्ट करे, टिकट खरीदे, जाए देखने के लिए।
आर्टिस्ट हमारे कम्युनिटीज का दिल होते हैं और उनका ख्याल करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है. Humaira Chenna is also online. Thank you, Humaira. It's good to see you. I can't wait to talk. अस्सलामुअलैकुम मैडम हुमैरा, कैसी हैं? Hello, जी. तो अब ये है कि हम जिस तरह रैप अप करते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिष्ठा, असद, Mikal. Thank you for being with us. This Thursday, I will be back with the Mosaic Noon Talks, and we will have the amazing Benny Dayal, who performed for Mosaic Festival, and he will be joining us. So I hope to see you guys at that point. So thank you once again. This talk has been made possible with the generous partnership of TD, and we are very grateful to them. We are very grateful to our sponsors, who are Greenwich Health Products, and to our wonderful, wonderful Canada Council, Ontario Arts Council, City of Mississauga, Culture Division, Factor Canada. Thank you very much for your support, Heritage Canada, and we will be back with you on Thursday. So thank you very much. Spread the word around, watch the show, share it with your friends, and we'll see you again. Ciao. Thank you so much.